Hello. Hi guys, this is Tuti Gogia. In case you are listening this voice for the very first time, you can go check out my social media handles. And this is season 2 of Tuti Speaks. So today I have a special guest with me whose name is Dishit. And Dishit is from the planet Digu, which is Dishit and Gunjan personal Instagram account where they share their travel stories. So obviously we were not able to do a three podcast, so I decided to talk either of them. So we decided to go with Dishit. And how I know Dishit is like Gunjan and me were working in the same organization for a period of time, and there I met her by a friend, and Dishit is her husband. So that's how we are connecting. I am sure this is going to be too complicated, so let's not get into those details. So these guys has lately moved to mountains. They are having their corporate job, but they are working via mountains, and they have a passion for living in searching and roaming in mountains. So I will hand it over to you, Dishit. Can you tell like your story a bit and how you guys decided to move to mountains? All right, Stuti. Thank you for such kind words for introducing us. And definitely, matlab, it wasn't a Planned. easy decision to, or yeah, definitely, it's not planned decision to move to mountain. So हमारे वैसे भी जो plans होते हैं वो काफी एकदम random plans होते हैं. If you see our videos, तो उसमें काफी you will find के हमारे just prompt plans बनते हैं and we just hit the roads that way. So how we fall into mountains is like um it was kind of a opportunity that I was getting to relocate other city, but then Omicron happened and in a way that हमें हमारा जो वर्क फ्रॉम होम था वो थोड़ा कंटिन्यू हो गया, थोड़ा यू कैन से एक्सटेंड हो गया एंड देन ऑब्वियसली हम लोग ने अपने जो करंट ओनर्स थे उन हुआ था एंड वी हैव टू ईदर वेज गेट आवर फ्लैट. तो उस केस में एक क्लिक के हम लोग यार सब हर प्लान करते थे केस जहाँ पे वी कैन लिव आवर ड्रीम लाइफ. तो उस टाइम पे हमें क्लिक हुआ व्हाई डोंट वी गो टू माउंटेन्स और ये हम लोग वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं. दैट्स हाउ वी एंडेड अप लिविंग इन माउंट. That's a great story. I had no idea about it. कि अच्छा ऐसा हो मतलब you were moving to some job like किसी city में or moving out of India. You वी वर एक्चुअली हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल रही थी टू मूविंग टू अ डिफरेंट सिटी, तो इन विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन. okay, तो okay, okay, okay. लोग तो Yeah, okay, उस okay. Okay, so yeah, so that's how like you landed up finally in your like वो होता है ना कि अगर दिल में कुछ हो तो वो automatically हो जाता है. I think that must have happened कि automatically you guys landed into a place. So how you decided on place कि यहाँ पे जाना है, मतलब ये भी एक difficult task रहा होगा ना कि ऐसे कहाँ जाएं और फिर कहाँ जाना है. हाँ इज डिफिकल्ट कि मतलब हम लोग को कोई जगह शॉर्टलिस्ट करनी है क्योंकि माउंटेन्स की बात करें तो काफी अलग अलग हिल स्टेशंस हैं और अलग अलग टाइप के माउंटेन्स भी होते हैं. हमें इस तरह से एक जगह शॉर्टलिस्ट करनी थी जहाँ पे हमें कनेक्टिविटी मिले इन टर्म्स ऑफ नेटवर्क, जहाँ ऑब्वियसली हमारी फुल टाइम जॉब्स हैं तो हम लोग अपना जॉब को भी अपना वर्क फ्रॉम होम अपना सही से कर पाए एंड ऑफ कोर्स रोड कनेक्टिविटी हो. बट वो रिसेंटली रोड कनेक्टिविटी हो जहाँ से वी कैन लिव आवर ड्रीम लाइफ, जहाँ से थोड़ा सा हमें विलेज वाला टच मिले, थोड़ा सा हमें सिटी वाला टच मिले. मतलब हम एकदम एक सेक्लूडेड जगह पे भी नहीं जा सकते थे और एकदम ही हमें सिटी लाइफ तो छोड़ ही रहे थे. तो दैट्स व्हाई मतलब दीज आर द पैरामीटर्स जिसकी वजह से हम जहाँ से हमने पैरामीटर्स के बेसिस पे कुछ जगह शॉर्टलिस्ट करी एंड वी एंडेड अप हियर नियर मनाली. नियर मनाली एंड बेसिकली यू वांटेड अ हाइब्रिड काइंड ऑफ लाइफ कि पूरा बिल्कुल ही वो भी ना हो कि ऐसा लगे कि बिल्कुल ही गांव में चलेंगे और ऐसा भी नहीं लगे ऑब्वियसली सिटी लाइफ से यू वांटेड अ बेटर प्लेस. सो बेसिकली नाउ आई वांट टू आस्क लाइक कि बहुत मेजर डिफरेंस इवन आई सी योर स्टोरीज एंड आई कीप फॉलोइंग यू गाइस आई सी अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन द वे ऑफ लिविंग. बहुत ज्यादा डिफरेंस है. So how do you feel? But being living in cities for years now and how living in mountain for approximately I think 6 months तो हो ही गए होंगे. I'm not sure though. यस हाँ हमें 6 मंथ्स एब्सोल्युटली 6 मंथ्स ही हुए हैं अभी यहाँ पे रहते हुए. एंड
डेफिनेटली यू मेंशनड इट राइट कि मतलब ज़्यादा डिफरेंस है इन सिटी लाइफ एंड विलेज लाइफ और माउंटेन लाइफ आई कैन से। और डेफिनेटली जैसे हम लोग यू कैन से कि कोरोना के स्टार्टिंग से थोड़ा बहुत वकेशंस करते रहते थे, लाइक कहीं पे गए और वी स्टे देयर फॉर 1 मंथ एंड वहीं से ही हमने पूरा अपना वर्क फ्रॉम होम कंटिन्यू रखा। और वहां से फिर हमें थोड़ा सा ग्लिम्स मिल जाता था कि जो है थोड़ा सा हार्ड होने वाला है, और थोड़ा माइंडसेट ऑलरेडी था कि हम लोग इस जगह पे जाएंगे, तो ये चीजें तो हमें थोड़ा सा हमें उस चीज का माइंडसेट हमारे ऑलरेडी था। तो अ, अगर हम बात करें डिफरेंस की तो डेफिनेटली डिफरेंस है। जैसे कि हमारा अगर सिटी लाइफ की बात करें तो हम जैसे सोसाइटी में रहते थे और बेसमेंट में गाड़ी पार्क होती थी, और यहाँ पे हमें जैसे गाड़ी थोड़ा लाइक काइंड ऑफ 1 और 2 किलोमीटर हमें दूर पार्क करके एक हिल को पूरा ट्रैक करके अपने घर तक पहुंचना पड़ता है। एंड देन एवरीथिंग लाइक वेरी बेसिक नेसेसिटीज, जो ग्रोसरीज भी लेके आनी है वो भी हमें लाइक 1-1.5 किलोमीटर वॉक करके हम्म। जाना है, एवरीथिंग। सो डेफिनेटली दोज थिंग्स वर देयर एंड वी ऑलरेडी हैव दोज थिंग्स इन आवर माइंड। तो उस चीज को हमने माइंड में रख के ही ये प्लान किया। बट मतलब देख के काफी, आई मीन ऑब्वियसली बहुत डिफिकल्ट साउंड होता है, बिकॉज जहाँ पे आप रह रहे थे वहां पे डोर स्टेप पे चीज आ रही थी, राइट? ग्रोसरी चाहिए, पिज्जा चाहिए, खाना चाहिए, उसी टाइम यू आर लाइक 10 minutes डिलीवरी, 15 minutes, एंड देन नाउ यू आर ट्रैकिंग ऑल द वे डाउन टू इवन हैव, अगर किसी को नींबू भी लेना हो तो दे हैव टू ट्रैक डाउन एंड हैव दैट। सो आई एम श्योर कि बहुत मेजर, मतलब देयर इज अ मेजर डिफरेंस, ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा लाइक। तो लाइफस्टाइल अडेप्ट करने में शुरू में अजीब नहीं लगा कि क्या कर रहे हैं, मतलब कैसे होगा? शुरू में ऐसा नहीं लगा कि कहाँ फंस गए, ऐसा नहीं लगा? आई विल से कि हमेशा नहीं लगा, कभी कभी लगता है बीच में कि जैसे वंस इन अ मंथ जैसे क्रेविंग होती है, यार आज पिज्जा नहीं खाया हमने, पूरा महीना निकल रहा, या फिर हमने बर्गर नहीं खाया तो और हमारे पास स्विगी का कोई कनेक्टिविटी नहीं है या जोमेटो की कनेक्टिविटी नहीं है। तो हाँ डेफिनेटली वो चीज वी डू मिस इन माउंटेन। दैट्स व्हाई वी आर हियर राइट, टू गेट कट ऑफ हम्म। फ्रॉम। तो हम्म। और एक थोड़ा हेल्दी लाइफस्टाइल रहने के लिए, और दैट्स व्हाई व्हाट वी क्रेव फॉर इन सिटीज। तो हम्म। दैट्स व्हाट इन आवर माइंड, तो हम लोग वही जी रहे तो हैं। अभी क्या लाइफस्टाइल रहता है? मतलब यू वेक अप अर्ली, ऐसा भी होने लग गया दैट यू स्टार्टेड वेकिंग अप अर्ली और रात भी बहुत जल्दी हो जाती है? हाउ हाउ आर थिंग्स नाउ, लाइक हाउ आर हाँ थिंग्स? नहीं, मतलब लाइक हम लोग का क्या रहता है, हम लोग जैसे ही माउंटेन्स में एंटर करते हैं हमारा लाइफस्टाइल एकदम अपसाइड डाउन हो जाता है। जो हम्म। वी टर्न इनटू अर्ली बर्ड्स, और हम लोग लाइक रात को 9-10 बजे तक सो जाते हैं। और जैसे ही सुबह फर्स्ट रे और फर्स्ट चर्प ऑफ बर्ड होती है तो हम लोग उठ जाते हैं विदाउट एनी अलार्म। तो दैट्स व्हाट लाइफस्टाइल वी बीन फॉलोइंग फ्रॉम पास्ट 6 मंथ्स नाउ। वाओ, दैट्स रियली ग्रेट। तो वहाँ पे कनेक्टिविटी के टर्म्स में यू आर नॉट फेसिंग एनी चैलेंजेस एज सच? मतलब वाईफाई एंड एवरीथिंग इज गुड, दैट वेज इट्स गुड? या दैट डेफिनेटली मतलब अभी काफी रिमोट लोकेशंस पे भी काफी अच्छी कनेक्टिविटी आ गई है। इफ आई टॉक अबाउट इन वन ऑफ द रिमोटेस्ट दैट आई हैव वर्कड इन, दैट वी हैव वर्कड इन इज इन लाहौल। लाहौल में भी एक कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे रोड्स की कनेक्टिविटी नहीं है, बट देयर इज अ कनेक्टिविटी ओवर नेटवर्क। तो वाओ। वहाँ पे मतलब इज लाइक आप जा मतलब हो सकता है आपको रास्ते चलने के लिए रास्ता ना मिले, बट यू कैन गेट अ वाईफाई। क्वालिटी। थैंक्स टू मुकेश अंबानी, थैंक्स टू जियो और सो whatever Airtel, wherever it is reaching. So कोई ऐसी स्टोरी you want to share, कोई ऐसा एक्सपीरियंस है which you want to share कि बहुत अच्छा हो, हार्ट टचिंग, और मे बी वेरी बैड एक्सपीरियंस which you felt के यार ये एक्सपीरियंस मतलब यहाँ पे इज लाइक कुछ भी मेमोरेबल which you feel के you want to share with the listeners? एक्सपीरियंस काफी काफी सारे एक्सपीरियंसेस हैं, मैनी गुड फ्यू बैड, बट डेफिनेटली लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस लाइक जैसे कि आई वुड से हिमाचल हमें काफी पसंद है ड्यू टू इट्स कल्चर, ड्यू टू द पीपल अराउंड। और यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे हमने रेंट आउट की है प्रॉपर्टी, उनके ओनर्स इतने अच्छे हैं, इतने हार्ट
वार्म वेलकमिंग है कि मतलब आई कांट से दैट इन वर्ड्स, कि जो वार्म वेलकमिंग। Hospitality from या them. certainly, certainly. Hmm. और हाउ वी एंडेड अप हियर इज लाइक, हम लाहौल गए थे। राशियल इज अ प्लेस, राशियल में हॉस्टल का होम स्टे है, वहाँ पे हम लोग रुके थे। और वहाँ की हॉस्पिटैलिटी हमें इतनी अच्छी लगी कि वहाँ वहीं से ही हमें यहाँ का कांटेक्ट मिला। मतलब दे आर रिलेटिव्स टू ईच अदर, तो वहीं से ही हमें यहाँ पे कांटेक्ट मिला। तो मतलब वही द सेम थिंग इज कि इतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी है और इतना हार्ट टचिंग हमें हॉस्पिटैलिटी मिलती है, दैट इट टचेज। मतलब you never feel कि कोई घर से दूर हो, you feel that warmth in people's heart and their minds, and they are always welcoming, and I mean keep treating you as their family only, not like कि हाँ ये तो rented and they are here for a while and then they'll move away, right? That ways. डेफिनेटली, डेफिनेटली, लाइक अगर जैसे हम आज के मेट्रोपॉलिटन सिटीज की बात करें कि वी डोंट नो कि हमारे सामने वाले फ्लैट में कौन रहता है, या फिर हमारे अगर इवन रिलेटिव्स भी सेम सोसाइटी में होते हैं तो दे हार्डली टॉक टू ईच अदर। बट Hmm. यहाँ में उस चीज की मतलब बहुत ही उस चीज को ओवरकम करने हुई कि एक तरह से एकदम स्ट्रेंजर्स, दे आर एंड फैमिली टू ईच अदर। Great, great. So, and you cook and everything by your own. वहाँ पे you are that you guys do all by your own. मतलब food के लिए, because I'm the main question I want to ask regarding that is कि I mean the amenities are good like gas and everything, or you cook on some particular things, ऐसा भी कुछ होता है being नो, नो, in नथिंग एज सच, लाइक वी डू हैव जो गैस का सिलेंडर होता है वो हमारी किचन में है। एंड नॉर्मल जो normal हम cooking. सिटीज में यूज करते हैं, इट्स ऑल अवेलेबल। बट सर्टेनली क्योंकि ऑब्वियसली इट्स 1.5 किलोमीटर ट्रैक, तो लिए थोड़ा लेबर कॉस्ट चलता है, बट इट्स ओके टू डू दैट। That's so fine. But because my question I'm asking, because for the context of listener, I saw something in your stories like कुछ different सी चीज थी उस चीज पे you were cooking like maybe that was one day thing, but बहुत ही कुछ huge सा था, and then there was something cooking on that, and I was wondering कि है क्या चीज, so that's why I asked. ओके, ओके, यू मस्ट बी आस्किंग अबाउट जो तंदूर होता है यहाँ पे। तो इट्स हाँ. काइंड बेसिक नेसेसिटी इन विंटर्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि देयर पर्सनल तंदूर, जिसको बुखारी भी बोलते हैं। और इट हेल्प्स टू कीप योर प्लेस वार्म इन विंटर्स। तो दे यूटिलाइज इट अदर वे ऑन, लाइक कुकिंग, फॉर कुकिंग एज वेल। लाइक Okay. घर में आपको और खाना भी साथ साथ में बन रहा है वहीं पे, तो Okay. दैट इज। अच्छा, वो जो दाल बुखारा होती है आई थिंक फिर वो इसी के लिए बोलते हैं, बिकॉज दैट्स लाइक वो तंदूर पे पकती रहती है कॉन्टिन्यूसली. देयर इज अ डेलिकेशन नेम्ड एज दाल बुखारा व्हिच इज लाइक अ 5 स्टार स्पेशलिटी. सो आई थिंक शायद कुछ रिलेटेबल होगा, बट आई एम नॉट श्योर. एकदम से याद आया मुझे. सो मे बढ़िया। बी. सो अभी के लिए क्या प्लान्स है, लाइक क्या सोचा है अभी यहीं रहना है, और भी इन केस यू वांट टू. हाँ, वी वर टॉकिंग कुछ बैड एक्सपीरियंस भी था क्या, कुछ बैड एक्सपीरियंस भी था विच यू फेल के यार ये सही नहीं हुआ हमारे साथ यहाँ पे. बैड एक्सपीरियंस नहीं बोलूंगा, इट्स आई वुड से थोड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस मे बी दैट शुड बी राइट वर्ड. constructive way is like, or you can say a little tip I want to give to the listeners, कि हम ऐसे सर्च करते हैं कि हम एकदम सेक्लूडेड जगह पे जाके रहते हैं, या फिर हम ऐसी जगह सर्च करते हैं कि एकदम ऐसे जहाँ पे कोई ना हो हम वहां पे जाके रहेंगे। दैट कि लुक फॉर दोज प्लेसेस, बट वहां पे ऐसी जगह सर्च करो जहाँ पे एटलीस्ट एक या दो फैमिलीज आपके आसपास रहें, बिकॉज वी हैव सीन और एक्सपीरियंस्ड सम ऑफ द इंस्टेंसेस जहाँ पे नॉट पर्सनल एक्सपीरियंस, बट या कुछ स्टोरीज जो जैसे हमें सुनने को मिलती हैं कि ट्रैवलर्स आए, दे गेट इनटू सम ट्रबल, क्योंकि वो एक तो नई जगह पे हैं एंड दे फेल इनटू सम प्रॉब्लम देयर, जहाँ पे उनकी हेल्प करने के लिए कुछ भी नहीं था। कोई नहीं होगा. हाँ, राइट, दैट्स द पॉइंट. ऑब्वियसली इतनी स्क्लूडेड में यू आर गोइंग एंड सेइंग कि हाँ भाई क्योंकि अकेले रहना है, या फिर थोड़ा फैंसी भी फील होता है ना कि हम ऐसी जगह गए जहाँ कोई नहीं था, बट उल्टा ही प्रॉब्लम हो गया. सो या दैट वेज. सो कमिंग तो बैक इट्स अगेन. या सॉरी, गो हेड.
I would say it's, as I mentioned, it's not personal experience, but ऐसी बहुत स्टोरीज हमें जैसे पता चलती हैं आसपास होती हैं, तो डेफिनेटली एंड इट्स लोकल्स नो दो स्टोरी, क्योंकि हमें तो फिर भी नहीं पता होगी, दोज हु पीपल आर लिविंग देयर फॉर द लॉन्गेस्ट वाइल उन्हें बहुत सारी ऐसी चीजें पता होती है। एंड आई थिंक द मेन डिसीजन which you guys took good was living with the family, like maybe renting out, like they must be nearby, so उससे थोड़ा सा फर्क पड़ता है, you have people to lean on कि भाई इनके पास कुछ तो सोल्यूशन होगा ही, बिकॉज दे आर बीइंग लोकल्स, और नहीं तो फिर तुम फंस जाओ, यू कांट डू एनीथिंग। बट या, देयर शुड बी अ वाइज डिसीजन, ऐसा नहीं है कि मतलब पैशन में चले गए और फिर फंस गए। सो एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट व्हिच आई वाज सेइंग कि क्या क्या प्लान्स है अभी आगे के, आर यू स्टिल प्लानिंग टू स्टे हियर, और अभी आई मीन व्हाट इफ यू ओनली इफ यू वांट टू डिस्क्लोज, और व्हाट आर लाइक ऑब्वियसली ट्रैवल प्लान्स तो इंस्टेंट होते ही हैं, सो या जो भी। एज आई सेड कि मतलब मैं पहले भी मेंशन किया है कि हमारे जितने भी प्लान्स हैं दे आर, तो वी कांट प्लान हाउ इट गोज, बट हाँ certainly if you get the opportunity just grab it and don't regret it when time passed. हाँ, वो तो बात के लिए है ही है। हाँ, that's good. And for the context of listener, as Gunjan is sitting by side, so Gunjan, maybe you want to say hi to listeners, or if you have something to say, please feel free to do that. I don't want you to be out of it. Just say hi or hello to the listeners, so that will be good. Yeah, hi everyone. Thanks, because I didn't want के ऐसा लगे कि हाँ सिर्फ दिलशित से ही बात हो रही है, your hi would be more than good for the listeners, so thank you so much. And coming back again to few of the things, I mean, how about the culture, like not the culture, I would say people wise, like overall culture of mountains क्या है, how can you explain a bit about that, in uh, terms of lifestyle, in terms of food, like whatever you feel like. एक चीज मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा यहाँ पे, एज यू सेड, एज देयर लाइफस्टाइल, मतलब जो हिमाचल में हमें बहुत चीज एक हार्ट टचिंग लगती है ना, कि यहाँ पे नो मैटर कितनी उनकी लाइफ हार्ड है, नो मैटर हाउ मच फाइनेंशियल क्राइसिस दे आर इन, हाउ मच प्रॉब्लमेटिक लाइफ दे आर गोइंग थ्रू, दे ऑल face, they Hmm. always welcome you with a very huge some smile on their face, और मतलब उनकी obviously everyone has problems in their life, but वो जो हार्ट टचिंग एक वेलकम, एक वार्म वेलकम आपको देते हैं एक ह्यूज स्माइल के साथ, इट ऑलवेज टचेस यू वेरी डीपली. And how about food? Food तो बहुत ही yummy feel होता है. There is lot to eat in Himachal always. Yeah, certainly, definitely. मतलब I would say कि though we cook on our own, हम लोग मतलब अपना जैसे जो हमारा नॉर्मल रूटीन में चलता है, डेफिनेटली वी डू, बट जो यहाँ की लोकल डेलिकेसीज हैं दे आर डेफिनेटली बियॉन्ड वर्ड्स. तो उनको हम लोग ऐसा होता है कि थर्ड वीक में हमारे इतनी क्रेविंग्स होती हैं कि हम लोग किसी लोकल ढाबे में चले जाते हैं, जस्ट dig into the plates and Food. Yeah. That's the best thing, and exploring the local food always helps. So Mm. बहुत ही, or any last notes for the listener, or anything which you want to say to people who might want to move to mountains, or maybe for a shorter while, चाहे कम time के लिए, but do you want to say something to them, or any like quicker tips for them? क्विकर टिप्स ऑलरेडी मैं एक वन लाइनर में दे चुका हूँ वैसे, कि when you see the opportunity just grab it. Hmm. Like might have plans, like we do have plans कि हम लोग रिटायरमेंट के बाद अपनी हिमाचल में एक छोटा सा घर बनाएंगे, नदी के पास एक घर होगा. We still have it, but we got the opportunity to live in. If you get the opportunity, just grab it, don't regret after when time. ये बहुत अच्छी बात बोली जो तुमने बोली, which I really like, that
हमें ऐसा लगता है कि हम जब बूढ़े हो जाएंगे या रिटायर हो जाएंगे तब कर लेंगे, तब पहाड़ में रह लेंगे, या तब पीपल से कि किसी बीच पे रह लेंगे जाके थोड़े दिन, गोवा रह लेंगे, या कुछ भी एक, मतलब वो चीज को पोस्टपोन नहीं करना चाहिए। इफ यू फील लाइक कि मुझे जाके रहना है, आई वांट टू एक्सपीरियंस इट राइट नाउ। प्लस इफ यू आर गेटिंग अपॉर्चुनिटी, डोंट वेट कि हाँ भाई एंड तक, कभी सोचेंगे कि 45-50 के बाद कभी सोचेंगे, दैट शुड नॉट बी द थिंग। सो आई रियली लाइक दैट। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर इंसाइट्स। आई एम श्योर कुछ लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, and I'll pass your details wherever I'm marketing it so that people can reach out to you if they have queries or they want to talk to you about something. I anyways urge listener to go follow them on YouTube and Instagram. So please do that. And so thank you so much, Dishit, on coming on my show and sharing your insights. This is really nice. I had a good time talking to you. And thank you everyone for listening to us. Stay happy, stay blessed, and most importantly, stay grateful. I might see you in other podcasts. Bye.